અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કામગીરી પ્રદીપ ગુરુની બનાવટી નોટો સાથે ધરપકડ કરી। અમરાઈવાડે પાસે આવેલા 2 કરોડની બનાવટી નોટ સાથે એક કાર ઝડપી પાડી 18 માર્ચે મળેલ બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી। સુરતના યોગ ગુરુ પ્રદીપ જોતંગિયા, મુકેશ ઠુમ્મર, અશોક માવાણી, રમેશ ભાલર, દિવ્યેશ રાણા, ભરત કાકડિયા અને એક મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી। 2 કરોડથી વધુના 500ના હાઈ ક્વોલિટી નોટની હેરાફેરી થઈ રહી હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કુલ 7 આરોપીઓ ઝડપી પાડ્યા છે। સુરતમાં પણ ચેકિંગ કરાવાતા 28 લાખના બનાવટી નોટ પકડી પાડ્યા હતા। ચાઇનાથી નોટ બનાવવા મંગાવતા સામાન હતો અને ક્રિપ્ટોમાં ચૂકવણી થતી। એઆઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવતો હતો। છૂટક નોટ બનાવતા અને મોટી લેવડ દેવડમાં ભેળવી શરૂઆત કરી હતી અને નોટનો ઉપયોગ થતો। છેલ્લા 6 મહિનાથી કામકાજ કરવામાં આવતું હતું। એજન્ટ મારફતે ચાઇનીઝ કોન્ટેક્ટ કરી અને હાઈ ક્વોલિટી સિક્યુરિટી ફીચર્સ સાથે માલ સામાન મંગાવેલ હતો, જેમાં પેપર પણ મંગાવવામાં આવ્યા હતા। 2.10 કરોડની નકલી નોટો પકડી હતી અને સુરતમાં 28 લાખથી પકડવામાં આવી હતી। પ્રદીપ યોગગુરુ છે, જે અન્ય આરોપી અને ગાડી સાથે રંગે હાથ ઝડપાયો છે। નક્કી કરેલ 20થી 25% ટકાવારી પર અન્ય 2 આરોપીને નોટ આપવાના હતા, જેમની તપાસ ચાલુ છે। યોગ ફાઉન્ડેશનના સંચાલક પ્રદીપ ગુરુ હતા અને અન્ય લોકો સાથે મળી કાળો કારોબાર ચલાવતા। એક મહિલા પણ સાથે રાખી નોટોની હેરાફેરી કરી રહી હતી। નોટનો છૂટક વપરાશ બાદ મોટા પ્રમાણમાં નોટ છાપવાની હિંમત મળી। કરિયાણાની દુકાનમાં પણ નોટો વપરાતી હતી। સુરતથી અમદાવાદ તરફ નકલી નોટનો મુદ્દામાલ લઈને આવી રહ્યા હતા। રિમાન્ડ મેળવવાની કામગીરી શરૂ છે। અન્ય નેટવર્ક ચાલે છે કે કેમ, કેટલા લોકો સાથે મળેલ છે તે અંગે તપાસ ચાલુ રહેશે। તમામ નોટ 500 રૂપિયાની હતી અને નોટ બનાવવાનો તમામ મુદ્દામાલ પણ 500 રૂપિયાનો જ હતો। મુકેશ પર 138ની કલમ નોંધાયેલી છે। મુકેશને આવડતા ડિઝાઇનિંગ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરતા હતા। ચાઇનાથી મંગાવવામાં આવતા હતા અને તૈયાર કરન્સી પેપર અને કલર પ્રિન્ટમાં પ્રિન્ટ કરતા હતા નોટોને। સુરત ખાતે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ મુકેશને ત્યાં હતી। બહારથી સ્ટેશનરીનું કામ થતું હતું તેવું બતાવી અંદર નકલી નોટોનું કામ ચાલતું હતું। પકડાયેલ ગાડી પર પણ સરકારી વિભાગનું સ્ટીકર લગાડવામાં આવ્યું હતું, જે અંગે તપાસ કરવામાં આવશે। તમામ મુદ્દામાલની FSL માટે પણ મોકલવામાં આવશે। आरोपियों ने चाइना खाते थी हवाई मार्ग मुद्दामाल आपवामां आवतो हतो। गई तारीख 18 मार्च को क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है। उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज़ किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो, उसके लिए आरोपियों द्वारा ChatGPT और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। इन 7 आरोपियों की अभी पूछताछ चालू है और आगे पुलिस द्वारा रिमांड मांगने में आएगी और रिमांड के बाद आप सबको आगे की जो भी प्रोग्रेस होगी वो बताने में आएगी। इसमें कुल 7 आरोपी मिले हैं, जिसमें मुकेश भाई ठुम्मर, अशोक भाई, रमेश भाई, दिव्येश भाई, प्रदीप भाई, एक महिला आरोपी और एक भरत भाई है। इसमें जो प्रदीप महाराज जी हैं वो एक योग गुरु कहने में आता है। उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका मुकेश ठुम्मर की है। जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे ACP साहब और इंस्पेक्टर जाडेजा, ये दोनों अभी सतत इन्वेस्टिगेशन में लीन है और आगे की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी प्राथमिक दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये गुजरात में ही चला रहे थे। हालांकि जो चाइनीज़ एजेंट्स हैं, जो चाइनीज़ पोर्टल्स हैं जहाँ से ये हाई क्वालिटी पेपर इंपोर्ट करने में आया गया है, उन्होंने किस तरह से कंसील करके छुपा के ये इलीगली इंडिया में घुसाया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। और बाकी कोई राज्यों में लिंक्स मिलते हैं तो वो सभी मीडिया के भाइयों को बताने में आएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपियों के हाथ से रंगे हाथ 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर के नोट पकड़े गए हैं और इनकी आगे की पूछताछ के बाद सूरत पुलिस की मदद लेते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत में जब चेकिंग करी तो उसमें बाकी के 28 लाख और प्रिंटिंग मटेरियल और प्रिंटिंग मशीन्स भी बरामद करने में आई हैं। ये पिछले 6 महीने से ये नोट छापने का अटेम्प्ट कर रहे थे। पहले इन्होंने धीरे धीरे छोटे मात्रा में, छोटी क्वांटिटी में नोट छापना ट्राई किया। जब इनको लगा कि ये हाई क्वालिटी नोट है, सामान्य दृष्टि किसी के नज़र में नहीं आ रहा है,
इन्होंने छोटी ट्रांजैक्शंस करी, उसमें भी जब ये सक्सेस गए तो धीरे धीरे इन्होंने बड़ी मात्रा में ये नोट प्रिंट आउट करने का कारोबार किया। अभी जो जैसा बताया गया कि कुछ किराने की दुकान में भी चला के देखा है, कुछ कैश आइटम्स परचेज़ करे हों, इस तरह के इन लोगों ने ये नोट्स का यूज़ किया है। उसकी कुल मात्रा अभी हम टोटल वेरीफाई कर रहे हैं कि टोटल कितना प्रिंट है, लेकिन अभी आगे की इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये आगे जिस एजेंट को ये परसेंटेज डिसाइड करके नोट देने आए थे, उनको धरपकड़ करने के लिए हमारे जो स्क्वाड्स हैं वो तैनात हैं, और जैसे ही आगे का रिसीवर की धरपकड़ की जाएगी आप सबको बताने में आएगा। कितना परसेंट फिक्स किया था इन लोगों ने? अभी 20 से 25% ये लोग कह रहे हैं। आगे का जब एजेंट्स पकड़े जाएंगे तो उसके बाद क्लैरिटी और मिलेगी। इसमें अभी तो और लोगों को सर अभी पकड़ने के जब जी बिल्कुल, इसमें जो इनके टेक्निकल डिवाइसेस मिले हैं FSL में उनको भेजा गया है। वहाँ से जो भी आगे की बाकी के जो आरोपी इस टोलकी के इस गिरोह के साथ हैं उनको पकड़ने में आया जाएगा। सर ये रॉ मटेरियल कहाँ से ये रॉ मटेरियल आप सबको बताया गया है, ये चाइना से इन्होंने इंपोर्ट कराया है अलग अलग माध्यमों से। तो ये किस तरह से इंपोर्ट करवाया है वो रिमांड के मुद्दे में कवर किया गया है, और आगे पुलिस रिमांड लेगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में चालू है।